Welcome to lockdown classes. This is the exercise 7.4 and this is the question number first. It is very important exercise and this question is most important from my side. So what is in this question? Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining the points A and B. So you have to draw one line segment. This is A and this is B, and the coordinates of A and B are 2 comma minus 2 and this is 3 comma 7. Another line which divides this line segment in some ratio we don't know. So what is the line? Line is 2x plus y minus 4 is equal to 0. So if you don't know what is the ratio, so you have to let the ratio is k ratio 1. The line divides this line segment is in k ratio 1. The intersection point where the line segment AB and this line intersect, this is P. The coordinates of P is x comma y. Clear है? If any doubt, then ask. So you have to let this is x1 y1, this is x2 y2, and if this line passes from point P, it means point P satisfies this line. So first you have to find coordinates of point P. So coordinates of point P is formula mx2 plus nx1 upon m plus n. Similarly my2 plus ny1 upon m plus n. Clear है? So just put the values. M is k, x2 is your 3, n is 1, x1 is your 2, and this is k plus 1. Similarly m is k, y2 is 7, n is 1 and y1 is minus 2 upon k plus 1. After getting simplification, you will get 3k plus 2 upon k plus 1, and this is 7k minus 2 upon k plus 1. Clear है? So this is the point of this is the coordinates of point P, and the line 2x plus y minus 4 passes from point P. It means point P satisfies this line. So point P satisfies the line 2x plus y minus 4 is equal to 0. Clear? तो कुछ भी नहीं करना है. 2x plus y minus 4 is equal to 0, and simply you have to replace x and y from these coordinates. ठीक है? So 2 into 3k plus 2 upon k plus 1 plus 7k minus 2 upon k plus 1 minus 4 is equal to 0. Then again simplify 2 into 3k, so this is 6k, 2 into 2, this is 4 upon k plus 1 plus 7k minus 2 upon k plus 1 minus 4 is equal to 0. So again take LCM. So LCM is k plus 1. So this will become 6k plus 4. This is 7k minus 2 and this is minus 4 times of k plus 1 is equal to 0. At the last we will get 7k plus 6k is 13k. 4 minus 2 is 2. Again 4 minus 4k minus 4 is equal to 0. So this is 13k minus 4k. So this is 9k. 2 minus 4 minus 2. So 9k is equal to 2. So k is equal to 2 by 9. So what ratio divides the line?
segment 2:9. 2x plus y minus 4 line which divides this line segment A and B in the ratio of 2:9. So this is the question number first. Now we have to move on question number 2. So this is the second question. Find a relation between x and y if the points x comma y 1 comma 2 and 7 comma 0 are collinear. So simply you have to write this. So let the point A is x comma y and the point B is 1 comma 2 and the point C is 7 comma 0. Let these x1 y1 x2 y2 x3 y3 clear है x1 y1 x2 y2 x3 y3. So if the points are collinear, that means the area of the triangle is 0. So area of triangle ABC is equal to 0. So 1 by 2 x. तो ये रहा. And now you have to put the values. So x1 is x, x2 is 1, x3 is 7, y2 is 2, y3 is 0, y3 is 0, y1 is y, y1 is y, y2 is 2. ये जो 2 है इधर जाके 0 हो जाएगा. So this is 2x minus y plus 7y minus 14 is equal to 0. So 2x plus 6y minus 14 is equal to 0. Then you have to divide, take 2 common. So if you take 2 common, this is x plus 3y minus 7 is equal to 0. So at the last we will get. So this is your question number second. Now move on to the question number third. This is the question number third. It is very important question. लिखा है find the center of a circle passing through the point these points 6 minus 6 3 minus 7 and 3 3. तो हमने एक सर्किल बना लिया. So we have to draw one circle and the points. So this is 6 minus 6. This is 3 minus 7 and this is 3 3. This is the point C, this is the point B, this is the point A. And you have to find the center. So let's suppose center is O and we don't know the coordinates. So coordinates are x comma y. The one most important thing is here कि OA, OB and OC are equal. OA is equal to OB is equal to OC. So what do you have to do? OA is equal to OB is equal to OC. You have to compare OA is equal to OB, then OA is equal to OC. तो अभी सॉल्व हो जाएगा ये. तो we start from OA is equal to OB. So OA, find the distance of OA. So what is OA? Under root difference of x coordinate. So x minus 6 का whole square plus difference of y coordinates. So y plus 6 का whole square is equal to under root OB x minus 3 का whole square प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. सो
at the last we will get x minus 6 का whole square plus y plus 6 का whole square is equal to x minus 3 का whole square plus y plus 7 का whole square. Now you have to open this, so this would be x square plus 36 minus 12x plus y square plus 36 plus 12y. तो LHS ओपन हो गया. Now RHS x square plus 9 minus 6x plus y square plus 49 plus 14y. ठीक है. तो again you have to cut x square to x square cancel out, y square to y square cancel out. Again next to simplify, 36 plus 36 72 minus 12x plus 12y is equal to 9 plus 49. So this is 58 minus 6x plus 14y. Clear है? So take all things from here to here. So 72 minus 58 minus 12x plus 6x plus 12y minus 14y is equal to 0. 72 minus 58, so this would be 14, minus 12x plus 6x minus 6x plus 12y minus 14y minus 2y. So this is 6x plus 2y minus 14 is equal to 0. So this is 3x plus y minus 7 is equal to 0. So this is the equation number 1. Okay. Now you have to find, equate OA is equal to OC. So again OA is this. I am directly writing now OA is this. Difference of x coordinates, so x minus 6 का whole square plus y plus 6 का whole square is equal to. Now OC, difference of x coordinate, so x minus 3 का whole square plus y minus 3 का whole square. So this is x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. क्लियर है. अगेन स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ओपन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, so y square plus 36 plus 12y is equal to x square plus 9 minus 6x, y square plus 9 minus 6y. क्लियर है. सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट. एट द लास्ट 36 plus 36 72 minus 12x plus 12y, 9 9 18 minus 6x minus 6y. Again transpose 72 minus 18 minus 12x plus 6x plus 12y plus 6y is equal to 0. So this is 72 minus 18. Again you have to solve this. So 54 minus 6x plus 18y is equal to 0. So you have to simplify this. 6x minus 18y minus 54 is equal to 0. Equation number 2. So we are having two equations and two unknowns. Now it's the part of pair of linear equation in two variables. So हमें क्या करना है, हमने देखा कि हम पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1, 3x plus y minus 7 is equal to 0, and equation number 2, 6x minus 18y minus 7 minus 6x minus 18y minus 54 is equal to 0.
तो ये रही दो इक्वेशंस। तो हमें क्या करना है कि हमें x को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जब हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 6x, ये मिल गया 2y, दिस इज -14 इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये रही सेकेंड इक्वेशन, ये रही हमारी थर्ड। कैलकुलेशन थोड़ा सा भी शायद मुश्किल है समझ में आया, लेकिन बट समझने की कोशिश कीजिए। फिर हमने क्या किया है, साइन चेंज कर दिए हैं, तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कट जाएगा। -18y -2y तो -20y, -54 plus 14, so you will get -40. So y is equal to -2. Y is equal to -2. Clear है? Now you have to put y is equal to -2 in equation number 2. So you will get, first you have to write the equation. 6x minus 18 into -2 minus 54 is equal to 0. 6x, 18 to the 36 and -54. ठीक है, so 6x minus 18 is equal to 0, so x is equal to 3. ठीक है, so now you are having x and y. If you are having x and y, it means you are having the coordinates of point O. So center is 3 comma -2. Clear? Now move on to the question number 4. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है द टू अपोजिट वर्सेस ऑफ ए स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्सेस। तो आपका स्क्वायर ये रहा, टू वर्सेस बोल दिए हैं, तो मैं एक वर्सेस 1, 2 ये ले लेता हूँ, अदर वन इज 3, 2. तो इस पॉइंट को मैं A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D. स्क्वायर है तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल and the angle this is 90 degree and the diagonals bisect each other. तो ये बात आपको पता है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये और ये पार्ट इक्वल होगा, ये और ये पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अभी एक एक करके हमें काम करना है। हमसे बोला गया है कि स्क्वायर है तो इट मीन्स AB इज इक्वल टू BC है। सो हम ए बी इज इक्वल टू बी सी कर देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हैं तो आप एक्स कॉमा वाई लेट कर लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 लेट कर लीजिए। सो दिस इज अंडर रूट ए बी इज डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सो दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज y डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, सो y माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट बी सी इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? सो अभी ये हो गया, फिर आप स्क्वायर रूट्स कैंसिल आउट जाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके आप देख लीजिए। तो एट द लास्ट आपको ये मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब आपको ये मिल जाएगा तो आप स्क्वायरिंग ओपन कर दीजिए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x and this is y square plus 4 minus 4y is equal to, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब देखिए माइनस 4y ये कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा इधर 2x प्लस 5 और इधर जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका 13 माइनस 6x है। तो आप एक काम कीजिए, जो वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड ले लीजिए और मतलब इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज कर लीजिए, कांस्टेंट को एक साइड ट्रांसपोज कर लीजिए, तो नाउ यू गेट दिस। तो 6x प्लस 2x हो गया आपका 8x हो गया एंड दिस इज 8, सो x वुड बी 1।
एक्स आपका 1 मिल गया, तो एटलीस्ट आपको बी का एक कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ और पता है कि देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो क्या आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? तो ठीक है, लगा सकते हैं। तो लिख दीजिए यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो मैं इधर लिखता हूँ कि ए बी स्क्वायर आपका क्या होगा, ए बी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर जो होगा वो आपका होगा डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सो दिस इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी भी यही लिख लीजिए आप, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये इससे गायब, ये इससे गायब। तो आपको x प्लस 1 मिलेगा यहाँ पे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू 1 रख लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1, तो आपको मिल गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये मत पूछिए 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ 1 निकाला हुआ है, इसलिए आप यहाँ वहाँ पे 1 आपने फाइंड आउट किया तो इसलिए 1 रख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे कि 1 कहाँ से रख रहे हैं, इसका मतलब फिर आपने सीधे बढ़ा के यहाँ पे आ गए। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 16। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इट मीन्स 2 का होल स्क्वायर इट मीन्स 4। मैं इसको अगर डायरेक्टली लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा माइनस 4y, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, दिस इज 16। अब देखिए 4 प्लस 4 8 प्लस 12 16, तो ये आपका कट हो जाएगा इससे। तो LHS में आपको 2y स्क्वायर माइनस 8y मिलेगा। आप यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो ये आपको 2y माइनस 8 मिल जाएगा। इफ एंड ओनली इफ पॉसिबल y इज इक्वल टू 0 एंड 2 y इज इक्वल टू 0, तो y एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4। तो आपको y के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, y के दो कोऑर्डिनेट मिल गए, तो y की दो वैल्यूज मिल गई, सॉरी। तो इसका मतलब हमारे पास b के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक 1,0 एंड एक हमारा 1,4। अब हमें पॉइंट निकालना है डी। बी तो हमें पता चल गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बी दो हैं तो डी भी आपके दो होंगे। तो क्या करेंगे हम डी के लिए, सीधा लिखते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो होगा वही क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करती हैं। मतलब जितना ए ही होगा उतना ई सी होगा, जितना ए डी होगा उतना ही बी होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। तो थोड़ा सा बेसिस क्लियर कीजिए अगर नहीं क्लियर है तो। ए सी का मिड पॉइंट अगर हम निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ, यानी x1 प्लस x2/2 इट मीन्स 3 माइनस 1/2 कॉमा 2 प्लस 2/2। और हम बी डी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x प्लस x1/2 कॉमा y प्लस y1/2। तो ये हो गया हमारा 2 और ये 4/2, मतलब ये हो गया 2/2, ये हो गया 4/2 एंड दिस इज x प्लस x1/2 एंड दिस इज y प्लस y1/2। और अगर देख लें तो आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, x प्लस x1/2 इज इक्वल टू 2/2, तो x1 प्लस x आपको 2 मिल जाएगा। यहाँ से देख लीजिए y प्लस y1/2 इज इक्वल टू 4/2, तो y प्लस y1 इज इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। ये हो गई दूसरी।
क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है वो देखिए। अब आगे वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ कि x प्लस x1 वाली इक्वेशन मिल रही है 2, ये पहला है। y प्लस y1 वाली मिल रही है 4, ये दूसरी है इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, हमें भैया x1 y1 निकालने हैं। हमें x और y तो पता है, तो पुट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहला बी वाला पॉइंट देखिए 1,0 1,0। तो इसका x और y क्या है, इसका x क्या है 1 है, y क्या है 0। तो यहाँ से देखते हैं कि x प्लस x1 इज इक्वल टू 2 था, तो x इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो x1 इज इक्वल टू, तो x1 क्या मिल गया आपको 1। और y प्लस y1 इज इक्वल टू 4 था, y 0 हो गया, तो y1 इज इक्वल टू 4, तो y1 आपको क्या मिल गया, तो आपको d के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 1,4। कब, जब b आपका 1,0 था। अब अगर क्या है, अगर पुट b इज इक्वल टू, b एक अलग कोऑर्डिनेट था 1,4, अगर हम b 1,4 लिख लेते हैं तब क्या होगा, b इज इक्वल टू 1,4 लिख ले तो हमारा x ये हो जाता है, y ये हो जाता है। अभी भी सेम चीज है, भाई वो तो चेंज नहीं होगा, x प्लस x1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 1, दिस इज x1 इज इक्वल टू 2, तो x1 आपको क्या मिल गया 1 मिल गया। y प्लस y1 बाई y प्लस y1 इज इक्वल टू 4, तो y क्या है, y यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये 4 हो गया, ये y1 हो गया, ये 4, तो y1 आपका क्या मिल गया 0। तो d कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 1,0। क्लियर है, एक कोऑर्डिनेट मिल गया 1,4, एक मिल गया 1,0। तो इसी तरह आपको b भी मिल गया था 1,0 1,4, d भी मिल गया 1,0 1,4। क्लियर है, एनी डाउट, आपको बी और डी निकालने थे। तो यही रहा आज की वीडियो में, इतना ही सिर्फ। बाकी नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।